that is just giving me the area, same as area of rectangle. Area of rectangle used to be the same, b into h. So what I did, uh, from the volume I extracted the area of the first part, something area of walls ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, area of walls, करेक्ट. सो वही मैंने इधर ट्राई किया. सो इन दिस केस एक्चुअली ये 3D में होता है जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, दैट यूज्ड टू बी इन 3D. अगर थोड़ा सा तुम लोग विजुअलाइज कर सको, सॉरी मतलब ग्राफ थोड़ा गंदा हो गया, बट समथिंग लाइक दिस, मतलब इट विल बी समथिंग लाइक दिस. और आई एम टेकिंग द फर्स्ट स्लाइड. Did you see? This is something like pack of breads. हर एक स्लाइस है, इसमें से मैंने फर्स्ट स्लाइस लिया. ठीक है. हेलो. नहीं भी समझा तो चलेगा, इसके बारे में हम लोग डिटेल में आएंगे. ओके. ओके, आर यू गाइस देयर? ओके. नेक्स्ट क्या किया था हम लोग ने? नेक्स्ट क्या है? दिस वाज एरिया. हाँ, एक और चैप्टर था डेफिनाइट इंटीग्रेशन, उसमें सम प्रॉपर्टीज थे ना. डेफिनाइट इंटीग्रेशन लाइक दिस, इंटीग्रेशन a to a f of x dx, this will be 0. Correct? Why? Can somebody tell me? Because we have already defined integration a to graphically अगर देखें तो ये क्या रहेगा? It will be just a line. Yes. What is area of a line? See, इंटीग्रेशन a to b होता तो ये क्या होता? ऐसा कुछ होता. क्या हो गया बोलो? हेलो. हेलो. करेक्ट. हाँ ठीक है. सो अगर b को लिया तो दिस विल बी, और अगर ऐसा लिया तो a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. करेक्ट. अगर मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया सो दिस विल बिकम b टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स. क्लियर? ये लिमिट चेंज होता है. यस एवरीवन. जस्ट सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड से यू कैन प्रूव दैट. इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा. एंड वन मोर थिंग इज माइनस ए टू ए क्या था? एफ ऑफ एक्स डी एक्स. करेक्ट. it is equal to something 0 to 2 times 0 to a f of x dx if f is something, and it is 0 if f is something. Now tell me what is that? What is the condition here? Correct. If your function is even function, then this integration it will be 2 times 0 to a f of x, and if it is odd function then it will be 0. हेलो हो कि नहीं तुम लोग? Okay, what do you mean by even function? Sir, if we put negative value of x, then we get f of x. Perfect, very nice. What is odd function? We put f of minus x, we get minus of x. Very nice. Okay. Okay. Clear everyone? I think एक पार्ट मैंने मिस किया जस्ट. समथिंग लाइक इट वाज इंटीग्रेशन एज सम, ऐसा कुछ था. सम ऑफ लिमिट समथिंग, limit of sum, integration as limit of sum. Do you remember that? I think first exercise, limit of sum, definite integration का first exercise. Okay, can somebody tell me what was that? It was something like uh, same integration
a to b f of x dx निकालना है अपने को. He was saying something in terms of limit and summation. That is अगर graphically बात करूँ मैं तो as we already know this is our function, this is our x equal to a, this is our x equal to b, correct? Now this is our function f of x. So we need to find the area of this. Yes, limit of sum याद है किसी को? What was the technique there? If anyone, do you remember that? What was the technique? Or what is the formula? Can somebody tell me? Something like this. Yeah, summation here r equal to 0 to आई थिंक n माइनस वन, और वो देखते हैं हम लोग, एंड लिमिट n टेंडिंग टू 0, ऐसा ही कुछ था. डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? व्हाट इज h हियर? h इक्वल टू b माइनस a बाय n. सो ये फॉर्मूला पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे हम लोग, डिराइव करेंगे ये फॉर्मूला आया कैसे. ठीक है, ओके. लिसन एवरीवन, हो तुम लोग साथ में हो ना मेरे? ओके. नाउ द थिंग इज दैट अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये ए टू बी है, इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया. ओके, सो सपोज मैंने मिड वाला पॉइंट लिया तो दिस विल बी ए प्लस बी बाई टू, करेक्ट? So to find area of this whole integral, is it enough to find area of this and area of this? Then I will add them. Is it okay? Hello? Yes, is it okay? Okay, now what I will do, I will again divide this. I'll again divide this. I'll find the integration of this. Will it be okay? Okay, now try to look at this properly. Suppose I am having a line. Okay, this is a to b. Now the question is that I want to divide it into n part. I want to divide this in n part, this interval into n parts, correct? So what is the length of this? What is the length? b minus a, correct? Now if I am dividing it n part, see, if I am dividing it in two part, then I have to b minus a by 2. Each length will be b minus a by 2. Yes, is it okay? Hello? If I want to divide it in two part only, now let us go ahead. If I divide into three part, then each length will be, is it okay? Each length means this length. Is it okay everyone? Now I want to divide it into n part, correct? This is my a, this is my b. I want to divide it into n part. So what will be length of each sub interval? इसको थोड़ा सा मैंने zoom किया, something like this. What will be length of this? Is it okay? Yes everyone.
हेलो हो कि नहीं तुम लोग? ओके, नाउ see, I am dividing, if I am dividing something into two parts, so I am having three nodes. What is nodes? That end point, correct? If I am dividing something into, see here I am dividing two parts, then I am having three node, 1 2 3. If I am dividing it end part, then I will be having n plus 1 nodes. Okay, let me draw it again. Now see properly, this is the main thing. Now I want to write all my nodes. The first node it will be A, and last node it will be B, but I want to write the next node also. Do you know the length of this? Do we know the length of this node? A plus B minus A by N. Very nice, very nice. Is it okay? यही रहेगा. This is my second node. What is my third node? Here we are having 2. So will it be A plus 2 times B minus A by N? Yes. Okay. What will be the last one? Yes, that is same as B. Just observe it. Is it same as B? Yes, everyone. इतना क्लियर है क्या किया मैंने? Okay, now let us go to our question. What was our question? We wanted to find, we wanted to derive that formula जो question में अपने को दिया गया था. Limit of something. Correct है? So this is my A, this is my B. So what I am going to find, जो each node है मेरा, correct है? This is my node. I want to अगर सपोज मैंने ये n को लिमिट n गोइंग टू इन्फिनिटी बोला, करेक्ट है? दैट मीन्स इट विल बी वेरी नियर टू दिस. यस, कैन यू सी दैट? And I am going to add everything. That is, I am going to add this. What is the height of this? What is this height? F of Okay, this point will be a comma f of a. Yes, the next point it will be, अपने को पता है नोड क्या है, उसके हिसाब से f of that. Yes. What is second point? A plus b minus a by n comma f of same thing na? Yes, everyone. Yes. So, and what is the width of this node? अपना जो नोड लिया है उसका width क्या है? B minus A by N. Okay, perfect है. So that means we got something. ये b और जितने भी नोड हैं सबका यही हाइट है. So b minus a by n, should I take it outside? It will be multiplied to each of the term. Do you see that? Yes, sir. Okay, and what is the height? Height is your f of a plus b by n. That is, it will be f of a plus f of a plus b minus a by n. Did you see that? And last term it will be f of b. समझा क्या किया मैंने? अगर थोड़ा अच्छे से बात करें तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड, जो एक मेरा कट करने के बाद जो फर्स्ट पार्ट आएगा जिसका लेंथ है क्या है, b माइनस ए बाई एन, सॉरी,
जिसका ये विड्थ है b माइनस ए बाय एन, एंड व्हाट इज लेंथ? लेंथ इज योर फंक्शन f of a. Length is y axis na. For second it will be something it will be f of a plus b minus a by n, and length ye, this width will be same, height will keep on changing. Do you see that? Hello, Yes, sir. do you see that? फर्स्ट पार्ट लिया मैंने, सेकेंड पार्ट लिया, करेक्ट है. नाउ इसको मैंने एन पार्ट तक कट किया, तो अगर मैंने लिमिट एन गोइंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी बोला, विल दिस गाय विल बी सेम एज एरिया ऑफ दैट कर्व, एरिया अंडर दैट कर्व. यस, Yes, sir. means I am making my partition more finer, correct? Just like if I am having only two cut, 1 2 3, I am having two cut, so I will be having area of this and I will be having area of this, or maybe upper, so this part is remaining. Now if I am having more cuts, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग थोड़े टाइम में, so I am getting more finer area. So if I am having n cuts, so I am just having like thread, more threads, or more needle I am keeping it here, I am keeping each needle here, correct? So I just need to multiply, I just need to add all the height of needle and multiply with the width. This is my width of needle and these are the heights of needle, first needle, second needle, third needle, like this. Did you see that? क्या किया हम लोग ने? ओके, सो फॉर्मूला क्या मिला मेरे को, क्या लिखा मैंने? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन b माइनस ए अपॉन एन इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच बोलता हूँ मैं यहाँ पे भी, ठीक है, r इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच लिखना चाहिए, वेयर r इक्वल टू 0 टू n. विल इट बी सेम एज जो मैंने ऊपर लिखा है? जस्ट ट्राई टू सी. अगर इसको मैंने एक्सपांड किया तो ये क्या आएगा? लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी व्हेन r इक्वल टू 0, देन दिस विल बी b minus a by n into f of a. Yes everyone, when r equal to 1, then this will be, this is your height, okay? ये केस में हम लोग ने ये हाइट लिया, बट ऐसा देखा तो मैंने ये हाइट लिया है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे मैं h को अज्यूम कर रहा हूँ b माइनस ए अपॉन n. सी, अगर तुम लोग को अच्छा ना लगे ये h, तो वी कैन राइट इट जस्ट लाइक a plus r into b minus a upon n. Now is it okay? Now if I am putting r equal to 1, so I will be having same b minus a upon n, it will be here only. Second term क्या है? f of a plus b minus a by n. Did you see this was my second node, this was my first node, so on. Hello. Yes, sir. Okay, so the motto of this discussion, क्या क्या किया हम लोग ने, क्या था? We wanted to find this area. Sir, हाँ. R 0 to n होगा कि n minus? What do you think if I put n minus 1, then see, if I put r equal to n, so यहाँ पे n आएगा, n कैंसल, ये पूरा टर्म क्या आएगा? लास्ट टर्म f of b आएगा ना. Did you see? क्या आना चाहिए, समझा? N. करेक्ट. ओके, सो क्या किया, क्या हम लोग ने क्या किया, ये जो है इसको पार्ट में, n पार्ट में डिवाइड किया, करेक्ट है? इसको मैंने n पार्ट में डिवाइड किया,
फिर लिमिट ले लिया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एंड जो भी वो एन पार्ट था उस पर अप्लाई किया, दैट इज़ योर एरिया। करेक्ट है। सो जहाँ भी लिमिट देखा वही अपना डेफिनेशन आता है, अभी तक यही देखा है। लिमिट ऑफ फंक्शन में आया तो हम लोग ने उसको एप्सिलॉन डेल्टा दे दिया, लिमिट ऑफ फंक्शन आया था। करेक्ट। क्या था लिमिट ऑफ फंक्शन? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए, दैट इज एल। कंटिन्यूटी की बात किया तो उधर भी लिमिट था। करेक्ट। डिफरेंशियबिलिटी की बात किया तो उधर भी लिमिट था, एक्स टेंडिंग टू वाई एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस। यस एवरीवन, आर यू गाइज फॉलोइंग इट टू मी? Yes, sir. ओके, नाउ हियर ऑल्सो आई एम हैविंग लिमिट। सो अभी यही जो है, इसी को, यही अपना मेन बंदा है जो अभी मैंने लिखा है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, वेयर एच इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। ऐसा समेशन है ना बीच में, इधर समेशन है, आर इक्वल टू 0 टू एन, ऐसा। सो ये लिमिट आया, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। समझा क्या? सो बेसिकली अभी मुझे करना क्या है, यही जो लिमिट है इसी का प्रूफ देना है, दैट इज दिस विल गिव मी द एरिया, देन वी कैन डिफाइन आवर इंटीग्रेशन। तो मैंने स्टार्ट में बोला था ना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कैसे आया ये, सो दिस वाज द ओनली थिंग। बट अभी भी हम लोग ने इसको अपने एप्सिलॉन डेल्टा या ऐसा कुछ नहीं किया है, समझ रहे? वी विल कम टू इट later on, but before that we want some notation, we will fix some notation which we will be using in this course. Okay, is it clear? Hello everyone. Yes, sir. So किया क्या हम लोगों ने, फर्स्ट इंटीग्रेशन के सब फॉर्मूलेज देखे 12th स्टैंडर्ड के, देन एक पार्ट था जिसको मैंने पर्पसली लास्ट में लिया, दैट इज सम ऑफ लिमिट। सम ऑफ लिमिट बोलते हैं कि लिमिट ऑफ सम बोलते हैं? लिमिट ऑफ सम, नाम लिमिट ऑफ सम है ना, करेक्ट है। हाँ, एंड वन मोर थिंग, किसी ने लास्ट लेक्चर में मुझसे पूछा था सर समेशन और इंटीग्रेशन मतलब इसमें डिफरेंस क्या है, ऐसा। करेक्ट है। सो ये दोनों एरिया ही निकालते हैं अपने को। करेक्ट है। सी, समेशन कब काम करता है? जब अपने को डिस्क्रीट है, फंक्शन नीड नॉट बी कंटिन्यूअस, योर फंक्शन नीड नॉट बी। सो मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो क्या करूंगा मैं, समझ रहे हैं? हर एक का एरिया निकाल के सबको ऐड कर दूंगा, परफेक्ट है। एंड इफ आई एम हैविंग कंटिन्यूअस थिंग, सो अगर मैं कितना भी ब्रेक करूं, करेक्ट है, सो देयर विल एग्जिस्ट सम एरर। सो उसी को नेग्लेक्ट करने के लिए वी टेक लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सो देयर ऑल्सो ये समेशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम ही है। सी, बाय यूजिंग दैट डेफिनेशन, इंटीग्रेशन को मैंने क्या लिखा, इन टर्म्स ऑफ समेशन लिखा, बट इज दिस दैट इज नॉट एक्चुअल ओनली समेशन, देयर इज समथिंग एल्स, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। Means this is the definition, integration is same as summation, only if I am having limit here. Correct? Yes, is it clear? समेशन मतलब समझ लेने का डिस्क्रीट, जस्ट मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ सबको। इंटीग्रेशन मीन्स योर फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, देन ओनली वी कैन डू दैट। ओके, you have any doubt then you can ask, or should I move ahead? हेलो, हेलो हो कि नहीं तुम लोग? सर रेफरेंस बुक कौन सा यूज करना है? हाँ बताता हूँ, जस्ट लास्ट में थोड़ा सा मेरे को टाइम देगा, लास्ट में बोलता हूँ मैं। कल के लेक्चर में क्यों नहीं था तू? सर बाहर गया था। लॉकडाउन में भी तू बाहर जा रहा है? सर अंडरग्राउंड चल गया।
हाँ लग चल बे, ठीक है। ओके, सुनो अभी। सो किया क्या हम लोग ने, इसको n पार्ट में डिवाइड किया, करेक्ट है। सो ये इंटी से सपोज मैंने इंटरवल ए टू बी बोला, इसको मैंने n पार्ट में डिवाइड किया तो मुझे एक सेट मिला जिसको मैं p बोलूँगा। वो सेट में एलिमेंट क्या रहेंगे, एक्स नॉट, दैट इज एक्स नॉट को मैं a बोलता हूँ, x1 x2, करेक्ट। लास्ट टर्म को मैं अगर xn बोलता हूँ, दैट विल बी योर b, करेक्ट है। नाउ ईच xi का फॉर्मूला क्या लिखूँ मैं, कोई बताएगा मुझे, व्हाट विल बी xi, a प्लस, वो कि नहीं तुम लोग, सी एक्स आई, अगर आई इक्वल टू जीरो है मेरा तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए ना, दैट मीन्स आई यहाँ पे होना चाहिए। सी आई इक्वल टू जीरो पुट किया, मेरा फर्स्ट नोड मिला मेरे को, आई इक्वल टू वन पुट किया, दैट मीन्स ए में मैंने नोड का विड्थ, डिड यू सी दैट, ये पार्ट को ऐड किया, मीन्स आई एम गेटिंग द सेकेंड नोड, दैट इज एक्स वन मेरा क्या रहेगा, सेकेंड नोड, ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन, एक्स टू विल बी a plus 2 times b upon n, yes, okay, so this is called partition. so first definition start करते हैं हम, चलो लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लिखते हैं। अब पार्टीशन क्या होता है, सी हम लोगों ने बेसिक अपना क्लियर कर लिया, जो भी करना है नाउ राइटिंग पर्पस के लिए ये सब कर रहे हैं कि लिखना कैसे है भाई, ठीक है, अभी सब समझ गए आपने को लिखना कैसे, सब डिवीजन पी बोलते हैं इसको, पार्टीशन बोलो या सब डिवीजन पी बोलो, ऑफ एन इंटरवल, इंटरवल a to b is a finite set, फाइनाइट सेट है ये, x नॉट x1 up to xn such that x naught is less than x1 is less than x2 is less than xn equal to b है, ये equal to a है, मीन्स जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट दैट शुड बी ए, एंडिंग पॉइंट बी, और बीच में कुछ भी हो सकता है। सी यहाँ पे मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगा कि एक्स आई मैंने कैसे लिया है, समझ रहे हैं, मैंने जस्ट एक सिंपल एग्जांपल दिया है ये एक्स आई करने का, यू कैन हैव मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टीशन हियर, समझ रहे हैं। ए और बी को पार्ट करने में तुम बहुत सारे मेथड यूज़ कर सकते हो, मैंने क्या किया, जस्ट लेंथ लिया और सबको इक्वल पार्ट में किया ना, तुम लोग को इक्वल नहीं चाहिए तो इक्वल नहीं कर सकते हो, क्या करो, ए माइनस बी, एक में हाफ कर लो, फिर इधर हाफ कर लो, समझा, ऐसा। सो ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया, ये मेरा थर्ड हो गया, ये मेरा फोर्थ, चार ही पार्टीशन, समझ रहे हैं क्या। सो वी विल नॉट डिफाइन एक्स आई हियर, एक्स आई डिपेंड्स ऑन यू ओनली, how do you want to partition your interval, but the thing is that partition क्या रहेगा, it is a set जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब जो पहला बंदा है दिस विल बी सेकेंड नोड, इट विल बी ग्रेटर देन द फर्स्ट नोड, मतलब दैट इज इंटरवल ऐसा आना चाहिए, ए x1 x2, समझ रहे हैं तुम लोग, xn, करेक्ट। टोटल कितने नोड्स है अपने पास, how many nodes are there, n plus 1, as I have already told you, n पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ तो it will have n plus 1, इवन आगे लिख सकते हो तुम लोग, the points xi are called nodes, ठीक है, क्लियर एवरीवन। Yes. Okay, now let us define two more thing, suppose let f is a function,
एफ फ्रॉम जे टू आर बोलता हूँ मैं, बी गिवन एंड सपोज, हाँ सी ये जे अगर मैं फिक्स कर दूँ तभी भी चलेगा, हाँ वही करता हूँ, जे बोलने पे तुम लोग कंफ्यूज हो गए। सपोज एक फंक्शन है, जस्ट 1 मिनट, ओके, let f is a function from a to b to r, because we are here रियल वैल्यूड फंक्शन की ही बात करेंगे। ऐसा समथिंग, सो दिस इज योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ओके। नाउ मैंने पार्टीशन तो डिफाइन किया, ठीक है। अभी अगर इन जनरल एक बंदे को पकड़ा, एक स्लाइस ऑफ ब्रेड की अगर बात किया मैंने, ठीक है, सेम लाइक एज बिफोर, सपोज मैंने इसको बोला ये एक्स आई है एंड दिस इज एक्स आई प्लस 1 है, ओके। समझा क्या किया मैंने? हेलो, जो मैंने नोट्स बनाया x1 x2 x3, उसमें 2 कंसेक्यूटिव नोट्स लिया अगल बगल में, जस्ट उसको मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक्स आई और एक्स आई प्लस 1 से। इज इट क्लियर इतना जो भी मैंने किया? दिस इज माई एक्स नॉट दैट इज ए, दिस इज माई एक्स एन दैट इज बी। क्लियर एवरीवन? नाउ वी डिफाइन टू थिंग, दैट इज वन इज एम आई ऑफ एफ। mi of f is glb of the function f of x, where x is lying between this xi to xi plus 1. And capital mi of f, try to understand जो भी मैंने लिखा है वो क्या है। lub f of x, same, xi is less than x is less than xi plus 1. Okay, what is your small mi? स्मॉल mi ऑफ फंक्शन बात किया तो मैं सिर्फ ये इंटरवल के अंदर की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं तुम लोग को? सी कंडीशन दिख रहा है? हेलो, सो अरे हो कि नहीं तुम लोग? है सर, ये नया टॉपिक। क्या नया टॉपिक? ये सब पहले से हुआ है। सी जस्ट इट इज अ सेट। एक सेट कैसा सेट है? एक सेट कौन सा? ये सेट है, सेट ऑफ ऑल फंक्शन। ये इंटरवल में फंक्शंस का वैल्यू क्या क्या आएगा? यही सब आएगा ना, ये जितने भी पॉइंट है, समझ रहे? सिर्फ ये इंटरवल, इसको मैं अगर एनलार्ज किया यहाँ पे तो ऐसा कुछ, जस्ट वो पार्ट को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, समझ रहे हैं तुम लोग को? इट इज लाइक दिस। समझ जाओ, ये लाइन मेरी नहीं बनी, ठीक है। ये एक्स आई है, दिस इज एक्स आई प्लस 1 है, समझ रहे? जस्ट मैंने ये पार्ट को इधर ड्रॉ किया है जो मैंने शेड किया था वहाँ पे, यस ओके। नाउ द थिंग इज दैट मैंने क्या किया, एक सेट बनाया जिसमें क्या है, वी विल टेक ऑल दीज वैल्यूज। ये फंक्शन यही है ना, ऑल द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स, करेक्ट है? नाउ एक मैंने डिफाइन किया एम आई, ये जो फंक्शन में सबसे GLB है, GLB मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। व्हाट इज लोअर बाउंड हियर? दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, सो GLB विल बी दिस, कैन यू सी दैट in this case, but doesn't mean that every function will look like this, समझ रहे तुम लोग को?
ये फंक्शन में हर एक वैल्यू पॉइंट किया, ये फंक्शन का सबसे मिनिमम वैल्यू मेरे को यही दिख रहा है। यस, Yes, sir. ओके। अगर मैक्सिमम सपोज अगर तुम लोग समझ जाओ, ये पूरा क्यों मिट गया, सपोज ऐसा समझ जाओ, और सपोज मैंने मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा ये, ठीक है। यस, समझ रहे तुम लोग को मेरी बात। Yes, sir. मतलब मैंने क्या किया, एक सेट बनाया, सेट में हर एक एलिमेंट लिए ये सब, करेक्ट है। ये जो मैंने ऐसा बनाया, दिस में बी ऑल्सो लाइक दिस, डजेंट मीन मेरा एंड पॉइंट ही एल यू बी एंड जी एल बी होएगा, समझ रहे। इन दैट केस दिस विल बी माई एल यू बी, लीस्ट अपर बाउंड, एंड जी एल बी विल बी आइदर दिस और दिस, ओके। सो जस्ट मैंने क्या किया, अपने इंटरवल एक्स आई टू एक्स आई प्लस वन में वी फाइंड एम आई, मतलब अगर मैं x1 और x2 की बात किया तो मेरा वो क्या रहेगा, m1 रहेगा, समझ रहे हैं क्या। नेमिंग मैंने इसके हिसाब से दिया है, फर्स्ट वाले बंदे के हिसाब से। इज इट क्लियर एवरीवन, जस्ट एक नोटेशन दिया है। तो अगर मैंने इन फ्यूचर m2 की बात किया तो तुमको समझना चाहिए m2 मतलब क्या, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंटरवल x2 टू x3, मतलब यहाँ पे x2 टू x3 आएगा, करेक्ट है। उसमें से आई एम टॉकिंग अबाउट GLB ऑफ दैट, वो इंटरवल में फंक्शन का GLB क्या रहेगा, समझ रहे हैं तुम लोग की मेरी, तुम लोग को मेरी बात समझ रहे हैं। इन दिस केस, इन दिस केस अगर बात किया तो मैंने, दिस विल बी माई, करेक्ट, दिस विल बी, ये क्या रहेगा मेरा, स्मॉल m की कैपिटल M, Small. करेक्ट, मतलब ये जो लेंथ रहेगा ना, दैट विल बी माई स्मॉल mi। यस, व्हाट विल बी कैपिटल Mi हियर, Sir, ऊपर है. ये बड़ा वाला, समझा। क्लियर है एवरीवन, मैंने क्या किया, मैंने जस्ट एक स्मॉल एम आई डिफाइन किया, दैट इज जी एल बी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात कर रहा हूँ, एल यू बी, जी एल यू बी का डेफिनेशन पता है ना तुम लोग को, मैंने बताया भी था स्टार्ट में भी, इवन एफ वाई में भी बात हुई थी इसके बारे में। हेलो, हो कि नहीं। है sir. ठीक है। Sir, एटी रो दोनों के बीच में लाइन कुछ तो ऐसा रहता है. किसके बीच में, मतलब क्या बोल रहे हैं, हेलो। Sir, कुछ नहीं sir. ठीक है, हाँ इतना क्लियर है क्या बोला मैंने, जस्ट एक एम आई डिफाइन किया, ये याद रखना बिकॉज नोटेशन है, नेक्स्ट टाइम यूज़ किया तो तुमको समझना चाहिए एम आई की बात, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इट इज़ जी एल बी ऑफ फंक्शन इन दिस इंटरवल, कैपिटल एम आई की बात किया तो इट इज़ एल यू बी ऑफ फंक्शन इन दिस इंटरवल। इज इट क्लियर एवरी वन। Yes sir. ओके, नाउ लेट अस सी, सपोज मैं कैपिटल एम आई को छोड़ता हूँ, ठीक है, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल एम आई ओनली, दैट इज मेरे ग्राफ में सेम यही ग्राफ नीचे भी बनाता हूँ मैं, वो कैपिटल एम आई के लिए, मतलब कंपैरिजन हो जाएगा अपना अच्छा खासा। ओके, नाउ सी, सपोज ये नहीं लेता हूँ मैं, सिर्फ यहाँ से लेता हूँ, दिस इज़ माई ए, दिस इज़ माई बी, ये फंक्शन में व्हाट विल बी योर एल यू बी, लीस्ट सॉरी जी एल बी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, आई थिंक दिस विल बी माई जी एल बी, थोड़ा सा पार्ट ऊपर बचेगा। यस, ये फंक्शन में मेरा जी एल बी क्या रहेगा, ये रहेगा, समझ रहे हैं क्या, ये सेट में सबसे मिनिमम फंक्शन का वैल्यू, डिड यू अंडरस्टैंड। स्मॉल एम आई की बात कर रहा हूँ इधर मैं, सिर्फ इधर मैं कैपिटल एम आई की बात कर रहा हूँ।
ये इंटरवल में फंक्शन का सबसे मिनिमम इधर मैक्सिमम है, इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, सबसे मिनिमम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। क्लियर है? यस सर। एंड यहाँ पे जस्ट मैं ऐसा कंसिडर कर दे रहा हूँ, ठीक है क्या? यस। यस सर। सो अगर इसी को कंसिडर करके मैंने एरिया निकाला, मतलब करना क्या है तुमको, सबका लेंथ मिल गया, दिख रहा है ये लेंथ है, और विड्थ तुमको पता है, विड्थ क्या रहेगा, एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई। समझ रहे हैं क्या? मतलब अगर मैंने इसी को एरिया को अगर लिखना चाहा तो क्या लिखूंगा मैं, ऐसा, दिस विल बी समेशन स्मॉल एम आई ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स आई प्लस वन माइनस एक्स आई। मतलब सी हियर, मुझे कैपिटल एम आई भूल जाओ, मुझे जस्ट ये पार्ट का एरिया चाहिए, तो एरिया क्या रहेगा, दिस इज सेम लाइक अ रेक्टेंगल, कैन यू सी दैट, whose height is mi and base is xi और xi प्लस वन का डिफरेंस। डिड यू सी, वही मैंने लिखा है। हेलो, यस सर। समझा मैंने क्या किया, जस्ट रेक्टेंगल बनाया जो अंदर रहेगा, एंड इट विल बी एम आई ऑफ एफ ऑफ एक्स नहीं लिखा तभी भी चलेगा, एम आई ऑफ एफ लिखा तभी भी चलेगा, इनटू दैट ये लेंथ, ठीक है। सो ये जो एरिया आएगा वो एक्चुअल एरिया से बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा, एक्चुअल एरिया क्या है मेरा, इधर देखो एक्स्ट्रा कुछ लोग बच जा रहे हैं, दिख रहे हैं, यस। सो ये जो एरिया रहेगा वो एक्चुअल एरिया से लेस रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे एल एफ पी। नेक्स्ट लेक्चर में इस पर मैं डिटेल में आऊँगा, डोंट वरी, जस्ट मैं बेसिक बता रहा हूँ। अभी दिखर इधर मैं कैपिटल एम आई की बात करता हूँ, तो ये इंटरवल में कैपिटल एम आई कौन सा रहेगा, ये रहेगा क्या, दिस इज द मैक्सिमम, कैपिटल एम आई मीन्स अपर बाउंड की बात कर रहा हूँ मैं, सो आई थिंक अपर बाउंड विल बी दिस, ऐसा कुछ, समझ रहे हैं, इधर अपर बाउंड विल बी दिस, यहाँ पे अपर बाउंड विल बी दिस। इज इट क्लियर एवरीवन? ग्राफ मेरा अच्छा नहीं आ रहा है, नहीं तो तुम लोग को दिखता, जस्ट एक सेकेंड। सपोज ऐसा किया मैंने, अभी देखिएगा, ठीक है। सी, ये केस में अपर बाउंड विल बी दिस गाय, ऐसा, ये केस में अपर बाउंड विल बी दिस गाय, अपर बाउंड, समझ रहे हैं क्या, यही अपर बाउंड रहेगा ना। ये इंटरवल में फंक्शन मैक्सिमम क्या है, ये है, ये इंटरवल में फंक्शन मैक्सिमम क्या है, ये है, ये इंटरवल में फंक्शन मैक्सिमम क्या है, ये है, सिमिलरली ये इंटरवल में फंक्शन मैक्सिमम क्या है, ये है, करेक्ट है। सो हियर ऑल्सो कैन आई राइट इट एज समेशन एम आई एफ ऑफ एक्स ऑफ वही हाइट, करेक्ट। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, यस। अभी बड़े वाले को देखो, ये एरिया मैं निकाल रहा हूँ, समझ रहे हैं, सो दैट इज कैपिटल एम आई, दिस इज माई हाइट एंड दिस इज माई विड्थ, दिख रहा है। तो ऐसे मैंने क्या किया, हर एक इंटरवल को करके सबको ऐड कर दिया, सो जो मेरा नया एरिया आएगा वो क्या रहेगा, एक्चुअल एरिया से बड़ा रहेगा कि छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा सर। बड़ा रहेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? सो बेसिक थोड़ा सा क्लियर हुआ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एल एफ पी बोलता हूँ एंड इसको बोलता हूँ यू एफ पी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये सब फिर से करने वाला हूँ, डोंट वरी, यहाँ से मैं फिर से करूँगा, ठीक है। हाँ सर। जस्ट बेसिक बताया थोड़ा सा, ओके क्लियर है, इंटीग्रल दोनों के बीच में लाइक होता है ना सर। करेक्ट, वेरी नाइस, इंटीग्रल दोनों के बीच में, एवरेज देंगे तो नहीं एवरेज नहीं हाँ बोल सर, सकते एक्चुअली, देखा हुआ लगता एवरेज बोल नहीं सकते ना। सी एवरेज मतलब एक कोई स्टैंडर्ड टाइप हो गया, इट है। विल बी, लेस देन इक्वल टू आएगा सर। नाउ सी, एक मैं और तुम लोग को हिंट देता हूँ, अगर सपोज मैंने इसके इसका मोर और एक पार्टीशन किया, मतलब फंक्शन मेरा फिर से ब्रेक किया, तो सी मेरा ये टर्म आएगा एंड ये टर्म आएगा, जो मतलब ज़्यादा एरिया बाहर जा रहा था अभी थोड़ा कम ही जाएगा,
मतलब इफ आई एम इंक्रीजिंग माई नोड्स, अंदर अगर नोड्स को बढ़ाऊंगा मैं, सो मेरा एरिया ज़्यादा वेस्ट नहीं होएगा, समझ रहे? आई विल बी मच क्लोजर टू एक्चुअल एरिया। सी अगर ग्राफ फिर से बात करते देखो, जस्ट 2 मिनट और लूंगा तुम लोग का। आई एम सॉरी, बीच में तुम लोग का ब्रेक भी था। ऐसा कुछ ईयर ऑल्सो ऐसा ही बनाता हूँ मैं। ओके ठीक है। सो दिस इज माई एक्स आई, दिस इज एक्स आई प्लस 1। अभी इधर देखो, अगर सपोज इसमें मैंने स्मॉल एम आई की बात करता हूँ सिर्फ मैं, स्मॉल एम आई क्या रहेगा इसमें, ये रहेगा, ये इंटरवल में फंक्शन का मिनिमम वैल्यू ये है। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes. ओके। अगर सपोज यही इंटरवल में मैंने एक और नोड बढ़ाया, मतलब एक और मैंने कट किया, तो अभी मतलब जो मैंने इधर एक्स आई प्लस 1 में इधर एक और बंदा आ गया, सपोज सी बोलता हूँ मैं उसको, ठीक है? सो इन दिस केस मेरा एम आई क्या रहेगा, ये रहेगा एक्स आई टू सी के लिए, एंड सी टू आई प्लस 1 के लिए ये रहेगा। कैन यू सी दैट? जो इतना एरिया मेरा वेस्ट हो रहा था, अभी बस इतना और इतना ही हो रहा है। इज इट क्लियर? मतलब ये पार्ट मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है, डिड यू सी? ये पार्ट मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है, बिकॉज ये पार्ट तो सेम पहले जैसा है ना, करेक्ट? ये पार्ट मेरे को एक्स्ट्रा मिल रहा है। सो इफ आई इंक्रीज मोर नोड्स हियर, और अगर मैंने इंक्रीज किया तो और मैं एक्चुअल एरिया के नज़दीक रहूँगा। इज इट क्लियर? ग्राफिकली थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या? करने क्या वाले हैं हम लोग? ओके चलेगा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका देखेंगे अच्छे से। और अगर कैपिटल एम की बात किया तो इधर कैपिटल एम क्या रहेगा, ये रहेगा, यस। और ये केस में ये मेरा नया है, तो इधर कैपिटल एम क्या रहेगा मेरा, कैपिटल एम विल बी समथिंग, ये और ये इंटरवल में कैपिटल एम क्या रहेगा, ये रहेगा, करेक्ट? और ये इंटरवल में कैपिटल एम क्या रहेगा, ये रहेगा। इधर भी देखो, ये जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, इधर इधर नहीं मिल रहा है ये पार्ट। डिड यू सी? मतलब अगर मैंने पार्टीशन में एलिमेंट ज़्यादा डाली, करेक्ट है, तो मेरे को आई विल बी मच क्लोजर टू माई एक्चुअल एरिया। इसी को हम लोग क्या करते हैं, एन गोज टू इन्फिनिटी करते हैं, याद है जो एक्चुअल फॉर्मूले में। दैट मीन्स मैं अपने पार्टीशन को मोर फाइनर करूँगा और एकदम पतला सा कर दूंगा, सो दैट इट विल बी जस्ट लाइक अ थ्रेड, नीडल। इसी पे हम लोग जाने वाले हैं, मतलब आवर मोटो इज गो टूवर्ड्स दिस। ओके, बहुत हो गया आज, ठीक है? क्लियर है एवरीवन? Yes. सो इन दिस लेक्चर बेसिक हम लोगों ने देखा अपने को करना क्या है। वी गॉट आवर डेफिनेशन, जो भी डेफिनेशन था लिमिट के टर्म में, अभी भी सबका डेफिनेशन है तो ये भी लिमिट के टर्म में है। लिमिट है क्या मतलब, एप्सिलॉन तो आएगा ही, तो वही एप्सिलॉन लाने के लिए ये सब काम हो रहा है। उसके लिए वी डिफाइन टू टर्म, दैट इज एक एम आई डिफाइन किया और एक कैपिटल एम आई। स्मॉल एम आई इज जी एल बी ऑफ फंक्शन इन दिस इंटरवल, कैपिटल एम आई इज एल यू बी ऑफ फंक्शन इन दिस इंटरवल। ये सब याद रखना है बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इट फ्रिक्वेंटली। एंड नेक्स्ट वी डिफाइन एल एफ पी। एल एफ पी क्या रहेगा, एरिया अगर मैं एम आई को कंसिडर करूँ हाइट। नेक्स्ट कैप यू एफ पी क्या रहेगा, एरिया अगर कैपिटल एम आई ऑफ एक्स को मैं हाइट कंसिडर करूँ। एंड दिस इज माई विड्थ, जस्ट ये विड्थ, ठीक है? ओके, क्लियर एवरीवन?